I am Sardana Misra from PC High School Patsa. Now I am going to tell you about the chapter syntax. That is the most important chapter of grammar for class 10. In this chapter, we will read whether the subject is singular, we use singular form of verb. Whether the subject is plural, we use plural form of verb. If we do any work, in that case we make any agreement that help us to do any work. In this chapter, the most important topic subject or verb. Now, at first we will tell you about subject. Subject means doer. Doer means karta. We cannot imagine any sentence without subject. Means if the subject is not available, we cannot write or we cannot imagine any sentence, because subject is the main component of any sentence. Or after subject, we will read about verb. There are two types of verb. Finite and non-finite. Finite verb, I want to tell you about the finite verb, the verb that can be changed with the change of the number and person of the subject. Means if the subject is not available, we cannot make in a sentence, or if the finite verb is also not available, it is impossible to write any sentence, because finite verb and subject is the main part of sentence. If we write we to read, अब we to read लिखते हैं, we मेरा सब्जेक्ट है और to read मेरा नॉन फाइनाइट हो जाता है. नॉन फाइनाइट होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग फाइनाइट वर्ब होता क्या है? फाइनाइट हमारे जो होते हैं जितने भी वर्ब हैं, मीन्स ऑल द इंग्लिश वर्ब्स दैट कैन बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ V2, V3, V4 and V5, and that is also known as lexical verb or the auxiliary verb. Auxiliary verb means primary auxiliaries and modal auxiliaries. Means finite verb and the subject, that is the main part of sentence. And in this chapter we will read about whether the subject is singular or plural. Now, if the subject is singular, then we use singular form of verb. If the subject is plural, we use plural form of verb. Then how can we know that whether the subject is singular or plural? If we do not know about the subject, whether the subject is singular or plural, we cannot use the verb. At first, we will tell you about the V1 form of verb. Means V1 form of verb is also known as मेन फॉर्म ऑफ वर्ब. हमारे जितने V1 फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, जितने भी हमारे V1 फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, सबके सब हमारे क्या हैं? प्लूरल हैं. हमारे V1 फॉर्म जितने भी हैं, सबके सब हमारे प्लूरल हैं. और जब हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, इसमें जब हम लोग एस या एस लगाएंगे तो मेरा यह क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा. मीन्स मेन फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल, एंड व्हेन वी यूज एस और एस आफ्टर द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट बिकम सिंगुलर. वेदर मेन फॉर्म ऑफ नाउन, मेन फॉर्म ऑफ नाउन जो होता है इज ऑलवेज सिंगुलर. मीन्स मेन फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल, बट द मेन फॉर्म ऑफ नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर. व्हेन वी यूज एस और एस, दैट बिकम प्लूरल. It means I want to tell you the main form of verb is singular
the main form of verb is plural, whether the main form of noun is singular. When we add s or es in any V1 form of verb, that becomes singular, but when we add s or es in any noun, that become plural. Now I want to come on the chapter subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले हम लोग अगर मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट plural, the verb will be plural. This is the main topic of this chapter. If the subject is singular, we use singular verb. If the subject is plural, we use plural form of verb. Then now we are going to tell you the first rule of subject verb agreement, that when the two subjects are joined with and. First rule, when the two subjects are joined with and, in this rule, if the two subjects are joined with and both of the subjects give a single idea, in that case the subject will be singular and we use singular form of verb. Means when the two subjects are joined with and both of the subjects give a single idea, in that case the subject will be singular and we use singular form of verb. मीन्स जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों के दोनों सब्जेक्ट एक सिंगल आइडिया दे रहा हो, जैसे हम लोग करते हैं ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर मीन्स ब्रेड और बटर दोनों मिलाकर भोजन का एक ही आइटम बनता है, और ब्रेड और बटर हम लोग दोनों साथ साथ खाते हैं। इसका मतलब दोनों मिल कर के फूड का सिंगल आइटम बना, तो द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर। इसी तरह हम लोग एक लूडो में गेम देखते हैं, लेडर्स एंड स्नेक। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं, एक तो ब्रेड नाउन और मेरा बटर नाउन, और दोनों के दोनों एंड से जुड़ गया। और हम लोग जनरली जानते हैं कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन हाँ, प्लूरल होते हैं, लेकिन जब दोनों के दोनों सब्जेक्ट मिल करके एक आइटम जब निर्माण करती है तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे लेडर्स, एक स्नेक दूसरा नाउन, और दोनों को मैंने किससे जोड़ा, एंड से। मीन्स एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट दोनों मिल करके मीन्स एक और एक मिल करके दो बना। लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो गेम का एक आइटम बनता है लेडर्स एंड स्नेक, सांप सीढ़ी वाला गेम, जो कि लूडो में एक ही होता है। इसी तरह राइस एंड करी, चिकन एंड करी,
ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब दो सब्जेक्ट, हम लोग जनरली अभी तक ये जानते हैं कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े मीन्स वन और वन टू और मोर देन वन सब्जेक्ट इज प्लूरल, एंड व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड then the subject will be plural because there is two subjects. But when the two subjects give a single idea, in that case we use singular form of verb. In this case we see the result, when we have to use the verb after the noun that is added by and, then we see the result. What will be the result? The result will be the single item of a food. Here the result will be the single item of a game. तो जब हम लोग एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में हम लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग एंड से जब दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो मेरा सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट ऑलवेज प्लूरल होता है। लेकिन जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये देखेंगे जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो द रिजल्ट विल बी द सिंगल आइटम ऑफ फूड। अगर मेरा ब्रेड एंड बटर, मैंने ब्रेड पहले खाएंगे बटर बाद में खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम लोग दोनों मिला करके एक सिंगल आइटम ऑफ फूड बना। इसी तरह यहाँ लेडर्स मीन्स सीढ़ी, स्नेक मीन्स सांप, दो नाउन है और एंड से जुड़ेंगे, सीढ़ी अलग नाउन अलग, लेकिन हम जब देखते हैं तो दोनों के दोनों नाउन हमारे एक सिंगल गेम दे रहे हैं, गेम ऑफ लूडो। तो इन दिस रूल we learned about whether the two subjects are joined with and both of the subject give a single idea. In that case the subject will be singular and we use singular form of verb. Now the same, or this is and. I want to tell you about the and is the conjunction. Conjunction is the parts of a speech. In the previous classes we read that there are 8 kinds of parts of a speech, 8 kinds of parts of a speech, but in the modern grammar there are 2 kinds of parts of a speech. मीन्स हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर कहती थी कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन पढ़े थे, जो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड सेंस इन द सेंटेंस, ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट आवर मॉडर्न ग्रामर से दैट जो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर क्लासेस। मीन्स फॉर्म क्लासेस दैट्स फॉर्म कैन बी चेंज, और वी कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ एंड। मीन्स हमारा जो एंड है, एंड हमारा स्ट्रक्चर क्लासेस में आता है। मीन्स स्ट्रक्चर अगर हो जाए राम या श्याम, राम और श्याम दोनों सेम नॉन है, लेकिन यहां पर जब मेरा स्ट्रक्चर बदला तो ये एंड से और हो गया। तो मेरा यह एंड जो होता है वो स्ट्रक्चर क्लासेज होते हैं और एंड मेरा फॉर्म क्लासेज नहीं होता। फॉर्म क्लासेज होते हैं द वर्ड दैट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड फॉर्म क्लासेज। मीन्स एंड इज कंजक्शन। हम लोग इस चैप्टर में एंड से 4-5 रूल पढ़ेंगे। एक रूल ये हो गया, व्हेन द 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड बोथ ऑफ द सब्जेक्ट गिव ए सिंगल आइडिया, द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर एंड वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेम रूल, when the 2 subjects are joined with and both of the subject give different idea. Means when the 2 subjects are joined with and both of the subjects give a different idea, in that case the subject will be plural and we use प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों के दोनों सब्जेक्ट अगर मेरा अलग अलग आइडिया दे रहा हो, इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है और हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें राम, एक तो सब्जेक्ट में राम हो गया और दूसरा सब्जेक्ट एंड हो गया और दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से।
और कभी भी हम राम और श्याम को मिला करके एक बना नहीं सकते। इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग आर लिख देंगे। इसी तरह हम लोग लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर एंड मिल्क। दो एग्जाम्पल मैंने लिया, वाटर एंड मिल्क। वाटर और मिल्क को मिला करके हम एक आइटम बना सकते हैं, मेरा एक लिक्विड बनता है, यहाँ पर इज हो जाएगा। और कभी भी वाटर एंड ऑयल को जब मिलाएंगे तो मेरा ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है, मीन्स दोनों मिलकर के लिक्विड का एक आइटम नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर हम लोग आर लगा देते हैं। तो साधारण सा बात है कि हम लोग ये दो रूल पढ़े हैं और बोथ द रूल्स आर सेम बट द रिजल्ट विल बी सिंगल और डिफरेंट, एंड द यूज ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट, whether the result will be singular the subject will be singular, whether the result will be plural the verb will be plural। अगर मेरा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों के दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगल आइडिया दे रहे हों तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। अगर मेरा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों के दोनों सब्जेक्ट मेरा अगर डिफरेंट आइडिया दे रहा हो तो द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। और हम लोग अभी इस चैप्टर को हम लोग का उपयोग कहाँ है, हम लोग जो ये चैप्टर अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं सिंटैक्स चैप्टर, इस चैप्टर का उपयोग हम लोग आगे जाकर एडिटिंग ओमिटिंग बनाते हैं, एरर करेक्शन बनाते हैं। तो एरर करेक्शन में मेरा यह रूल अगर हमको पता रहता तो यहाँ वाटर एंड ऑयल अगर इज दे दिया तो अगर हमको अगर रूल पता है कि वाटर एंड ऑयल मिल करके सिंगल लिक्विड नहीं बन सकता, दोनों कभी मिलता नहीं है, तो वहाँ पर अगर इज है तो हम उसको काट के आर कर देंगे, मेरा एक नंबर बन जाता है। इस स्थिति में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे। और हम लोग अभी तक अगर हम टेंस की चर्चा करें तो टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग टेंस अब जो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को टेंस नहीं पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ टेंस। और यूज ऑफ टेंस हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे पिछले क्लास में, जबकि हम लोग चर्चा किए हुए थे 9th में, जो द लॉस्ट चाइल्ड एक चैप्टर था, सबसे फर्स्ट चैप्टर, और उसमें मैंने बोला था कि ये लॉस्ट है क्या। तो इस तरह से हम लोग पेसिव वॉइस का भी हम लोग यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ पेसिव वॉइस पढ़ेंगे, यूज ऑफ टेंस पढ़ेंगे। मीन्स अभी तक जो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़े, अब हम लोग के 10 में वो सिलेबस नहीं है। कभी भी तुम लोग ये देखा होगा जो हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में कभी नरेशन दिया हुआ नहीं होता है, मेरा नरेशन नहीं होता, तो हम लोग नरेशन का उपयोग करेंगे कहाँ। अगर हमारा नरेशन चैप्टर में मेरे क्वेश्चन में अगर नरेशन नहीं आ रहा है तो नरेशन क्या यूज कहाँ करेंगे, तो हम लोग नरेशन का यूज करते हैं डायलॉग राइटिंग में, कन्वर्सेशन राइटिंग में ना। तो थर्ड रूल है, फर्स्ट रूल था when the two subjects are joined with and both of the subject give a single idea, the subject will be singular and we use singular form of verb। And when the two subjects are joined with and both of the subject give a different idea, the subject will be plural and we use plural form of verb। Now when the two subjects are joined with and, both same rule, when the two subjects are joined with and both subject take determiner, the subject will be plural and we use plural form of verb। Now this is the new word determiner। Our modern grammar tell that the determiner is the 9 parts of speech, but our grammar
already tells us there are 8 parts of a speech according to their meaning and sense. Then what is determiner? This is the new word, and your grammar teacher tell you that determiner is the 9th parts of a speech. Means according to them, all the English words are divided into 9 groups according to their meaning and sense in the sentence. Each part is called parts of a speech, but it is not declared in the grammar book that there are 9 parts of a speech. तो डिटरमाइनर होता क्या है? हमारे सबसे पहले, अब देखो हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं. आर्टिकल हम एक तरफ ये कहते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड सेंस. तो क्या हमारे 8 ग्रुप्स में आर्टिकल हैं? नहीं है. अगर आर्टिकल नहीं है इसका मतलब ए एंड द इंग्लिश वर्ड नहीं है. तो हमारे जितने भी आर्टिकल हैं और जितने भी हमारे एडजेक्टिव हैं ना, हमारे जितने भी आर्टिकल हैं सबके सब एडजेक्टिव हैं. अगर आई हैव ए पेन तो नंबर ऑफ एडजेक्टिव, आई हैव एन एप्पल, नंबर ऑफ एडजेक्टिव. दिस इज दी बॉय, यह वही लड़का है, द भी एडजेक्टिव. इन दिस केस आर्टिकल और एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिटरमाइनर. मीन्स हमारे जितने भी आर्टिकल हैं सबके सब एडजेक्टिव में आते हैं, और जितने भी एडजेक्टिव हैं सबके सब हमारे क्या होंगे? डिटरमाइनर होंगे. तो सबसे पहले तो हम डिटरमाइनर देखेंगे. डिटरमाइनर जितने भी एडजेक्टिव, जितने भी आर्टिकल हैं सबके सब डिटरमाइनर हैं. तो इस स्थिति में हमने इससे पिछला रूल भी बताया था कि ज्वाइंट विथ एंड, 2 रूल बताए, सिंगल आइडिया, डिफरेंट आइडिया. और यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन द 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स टेक डिटरमाइनर. डिटरमाइनर जैसे यहाँ पर कह देते हैं माय फादर एंड माय गार्जियन, माय फादर एंड माय गार्जियन. अब देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट फादर, एक सब्जेक्ट गार्जियन ना, और बोथ ऑफ द subjects are added by and na, and both of the subjects take determiner, or this is the possessive adjective. My is called possessive adjective, and possessive adjective we already told you that the adjective is known as determiner. अब मेरे पिताजी और मेरे गार्जियन, मेरे पिताजी और मेरे गार्जियन, इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि मेरा 2 सब्जेक्ट है और दोनों के दोनों सब्जेक्ट माई मीन्स डिटरमाइनर ले रहा है, तो द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल. और ऐसा बात नहीं है, अगर मान लो यहाँ पर हम कह दें द पोएट एंड द सिंगर, मीन्स द पोएट एंड द सिंगर मीन्स कवि और गायक ना. और इसी को हम लोग रूल चेंज कर लेते हैं. ये तो आसान सा बात है कि जब 2 सब्जेक्ट मेरा एंड से जुड़ा हुआ और दोनों सब्जेक्ट के पहले या तो कोई एडजेक्टिव हो नहीं तो कोई आर्टिकल हो, यानी दोनों के पहले अगर डिटरमाइनर हो जाएगा तो द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल. और इसी स्थिति में अगर हम एक का डिटरमाइनर हटा लें या आर्टिकल एडजेक्टिव हटा लें ना, व्हेन द 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड the first subject, only the first subject takes any determiner, in that case the subject will be singular. जैसे my father and guardian, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी ही क्या है? मेरे गार्जियन है. यहाँ पर the poet कवि, और कवि ही क्या है? सिंगर है. तो एक साधारण सा रूल है कि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों सब्जेक्ट के पहले या तो आर्टिकल आवे नहीं तो डिटरमाइनर आवे, तो द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल. अगर मेरा सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट अगर आर्टिकल और डिटरमाइनर ले रहा हो और एंड से 2 सब्जेक्ट अगर जुड़ रहा हो और सेकेंड सब्जेक्ट अपने पीछे आर्टिकल या डिटरमाइनर नहीं ले रहा हो, तो द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर. मीन्स बोथ सब्जेक्ट कैरी डिटरमाइनर, द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, एंड द सिंगल सब्जेक्ट और द फर्स्ट सब्जेक्ट कैरीज द डिटरमाइनर, द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर. ठीक है. तो हम लोग देखें जो हमारे जितने भी एडजेक्टिव हैं सबके सब हमारे क्या हैं? डिटरमाइनर हैं.